So, good morning to all of you. As you said that many of you have completed exercise 12.2. So, we are going to start exercise 12.3 today. Those who have not done, they will try to do it and will send their problems if any, so that in the next class we can solve the queries, right? We can take your queries. Now 12.3 we are starting here. You will be given various shapes and some of its area will be shaded and we will have to find out the area of the shaded part. ठीक है, अब वो आपने देखना है कि शेडेड पार्ट का आप एरिया किस तरह से निकालेंगे, राइट? डिफरेंट शेप्स मर्ज करके आपको दे देते हैं, उसमें शेड कुछ पार्ट शेड कर देते हैं, वो आपने फाइंड आउट करना होता है कि उसका एरिया किस तरह से आएगा, राइट? सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.3. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर. इफ PQ, you are given a circle and in the circle you are given a diameter and this is one of the chord and OPQ, this is O, this point is P, this is Q. This area is the shaded part. Also if you see these 2 points R and P, they are joined and this area is also shaded, which is very lightly visible in your book. Actually the figure is like this and you are given that PQ is 24, PQ is 24 and PR is 7. PQ, this is 24 centimeter and PR, this is 7 centimeter. We have to find out the area of shaded region. चलो बताओ कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम से मैम QR निकाल राइट Very ट्रायंगल है तो Yes. पाइथागोरस First of all, QR आ जाएगा मैम डायमीटर आ जाएगा इसका आ जाएगा. आपके पास इसका डायमीटर आ जाएगा. इफ यू अप्लाई रेडियस हो जाएगी 25/4. इसमें कौन नजर आ गया आपको? पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा दिया आपने? मैम ये ट्रायंगल राइट है, मतलब क्यों? राइट ट्रायंगल, क्योंकि सेमी सर्कल के मैम राइट एंगल ट्रायंगल है तभी तो एंगल इन सेमी सर्कल. Yes. Semicircle is always video. आपकी वीडियो पोज हो हाँ जी. So this you have to find out the area of shaded region. आपने ये देखना है कि किससे क्या हम find आप shaded region पहुंच सकते हैं. ठीक है. Now we are coming to number. We start now. Now we have question number 4. Find the area of the shaded region in the figure where the circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with the vertex of an equilateral triangle with side 12 centimeter. Now you have an equilateral triangle and its side is 12 centimeter. So all sides are 12 और 6 centimeter radius का एक इसके ऊपर circular arc draw किया. ठीक है. And we have to find out the area of the shaded region. Here shaded region is the complete circle and this triangle also. Shaded region कैसे निकालोगे? इन दोनों के एरिया को प्लस करके मैम अलग पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, फिर मैम सर्कल को ट्रायंगल में से मैच करके एक सेक्टर बन जाएगा. ट्रायंगल का फिर एरिया sector- कैसे निकालोगे? What is the formula for area of triangle? √3a²/4. Yes, √3/4a square. This is the formula for area of equilateral triangle. So we are putting the values √3/4. What is a here? The side of 12. equilateral 12. triangle, that is 12. So 12 square means 12 into 12. Cancel कर दीजिए. You will get 36 √3.
36√3। अब आपने फाइंड आउट करना है इसका एरिया। इसकी रेडियस आपके पास गिवन है दैट द रेडियस इज 6। ठीक है, एरिया कैसे निकालोगे? व्हाट इज दिस एरिया ऑफ, ये क्या चीज है ऊपर वाला? आर्क है। हाँ जी, आर्क तो ये वाली है ना। ये पूरा एरिया जो आपने निकालना है ये किस चीज का है? IR square. सेक्टर का Sector. सेक्टर, मेजर सेक्टर हो गया। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस सेक्टर नाउ? 60 60। तो बेटा ये वाला होगा, ये 60 300 डिग्री। ये एरिया निकालना होगा। अच्छा ठीक है। 300 आपको ये वाला एरिया चाहिए तो आप एंगल भी ये वाला लगाएंगे। कितने डिग्री का हो गया? 300 60 300. 60 minus ट्रायंगल के 60. सारे वर्टेक्स के एंगल 60 होते हैं। Yes, so it will be 300 upon 360 pi into 6 square। ठीक है, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका 300 डिग्री कहाँ से आया। कैंसल 5/6 into 22/7 into 6 into 6। एक 6 से आपका ये 6 तो कैंसिल हो गया और आपके पास कितनी वैल्यू आई है? 660 upon 7। Then you have to find out the area of shaded region। तो आप क्या तो करोगे? plus इन कर दोनों देंगे। एरियाज को कर दोगे प्लस, ऐड ये एरिया और ये एरिया। तो आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 660 अपॉन 7 प्लस 36√3। ठीक है, अगर √3 की वैल्यू गिवन होती तो हम पुट कर देते, नहीं गिवन है वी विल लीव द आंसर एज इट इज। ठीक है, नाउ ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Your next question is, from each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut। Square, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर और हर कॉर्नर से आपने एक एक क्वाड्रेंट कट कर दिया जिसकी आपके पास रेडियस है, चारों की रेडियस सेम है दैट इज 1 सेंटीमीटर। ये 4 क्वाड्रेंट्स अगर मिल जाएंगे तो क्या मैम पाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकते? किस में होता? उसमें पिछले क्वेश्चन में आप पाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारे पास अगर मैं पाई आर स्क्वायर लगा देती हूँ तो ये मेरा पूरा सर्कल काउंट हो जाएगा और एक मैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर चुकी हूँ, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? 2 बार आ जाएगा। बट हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इसको 2 बार तो लेंगे नहीं, वी विल हैव टू टेक इट ओनली वंस। तो एक बार लेने के लिए जब आपने ट्राइंगल में ले लिया है तो आप सर्कल में नहीं लोगे। अगर आप सर्कल का लगाना चाहते हो और ट्राइंगल का प्लस करना चाहते हो फिर आपको ये वाला पार्ट एक बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप ये लगा सकते हो पाई आर स्क्वायर पूरे उसका लगा दिया सर्कल का, सेक्टर √3/4 a स्क्वायर आपने ट्राइंगल का लगा दिया। इसमें से ये एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, so we are on this question, we have to find out the area of the shaded region। this is the shaded part। बीच में भी सर्कल है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें भी एक सर्कल बनेगा और इसमें सर्कल की रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी? 1। 1 4 पार्ट कर रखे हैं सर्कल के। तो 4 स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, हाँ जी 68 into area of quadrant minus area of circle। यस 68 अपॉन 7 आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ quadrant, that is 1/4 pi r square, radius is 1, and when you will simplify it you will get the area to be 68/7। ठीक है, मैम सेंटर में भी एक और सर्कल है। अच्छा सेंटर में एक और भी है। ओके, we have one more circle here also and this is also of radius 1 centimeter। तो इसमें से आप एक और माइनस कर देंगे सर्कल। ठीक है, दोबारा से सुनो। which do I have to explain again? This question or the This previous question. one?
हाँ This question. दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर एक एक क्वाड्रेंट कट किया हुआ है और सेंटर में से एक सर्कल कट किया हुआ है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज शेडेड। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड तक पहुंचने के लिए आपको ये देखना होता है कि टोटल एरिया कितना है, उसमें से कट क्या क्या है। सो टोटल एरिया तो है आपके पास स्क्वायर, हमने लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और साइड है 4। ठीक है, इसमें से आपने 4 क्वाड्रेंट्स माइनस किए हैं, 4 क्वाड्रेंट्स माइनस किए हैं। क्वाड्रेंट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर, या फिर 90, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है ना इसका, सो 90/360 पाई आर स्क्वायर। 90/360 आपका ऑटोमेटिकली 1/4 हो जाता है। सो 1/4 पाई आर स्क्वायर, और कितने हैं क्वाड्रेंट्स, 4। उसके साथ साथ हमारे पास ये भी सर्कल है जो कटा हुआ है, सो वी विल हैव टू अप्लाई पाई आर स्क्वायर ऑल्सो। पाई, इसकी रेडियस भी 1 है, सो पाई इंटू 1 स्क्वायर, हम इसे भी माइनस करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल कैलकुलेट इट्स वैल्यू। 4 स्क्वायर इज 16, ये आपका 4 से 4 कट हो गया, ये हो गया माइनस पाई माइनस पाई, so 16 minus 2 pi and pi is 22/7, so it will be 16 minus 44/7। ठीक है, और उसके बाद 16 7 जा एलसीएम लेना होगा ना। माइनस 44, डायरेक्ट कर देंगे ना, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ वही किया है, एलसीएम ही लिया है। मैम लक्ष्य कह रहा था। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, एलसीएम ही तो लिया है फिर भी, डायरेक्ट में भी। ठीक है, और आप माइनस करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर टू बी 68/7। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में किया है कि आपके पास टेबल कवर है, उस पर डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पर भी उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग। In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle. एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसके ऊपर आपने डिजाइन बनाया, सिर्फ इसमें आपने बीच वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ दिया और जो बाकी पार्ट है उस पे आपने डिजाइन बना दिया। इधर हो गया, इधर हो गया, एंड दिस एरिया इज ऑल्सो विद द डिजाइन। समवेयर इट विल हैव the center of the circle, and we have to find out the area of the design. ये जो पूरा डिजाइन है, we have to find out its area. तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? सर्कल के एरिया अगर में से आप ट्रायंगल सर्कल माइनस ट्रायंगल, सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया ट्रायंगल माइनस माइनस कर देते हैं। ठीक है, आपके पास जो 32 गिवन है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की रेडियस ये 32 है। ठीक है, कैसे करूं? सर्कल का तो चलो मैंने लगा दिया पाई इंटू 32 स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूं? मैम 2:1 से। बिल्कुल आप उससे कर सकते हो, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था एक क्वेश्चन आपका अंकुर डेविड सईद वाला, उसमें आपने इसको किया था इससे ज्वाइन, राइट? ये हमारी जो लाइन होती है, बिकॉज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इस सर्कल, ये बोलते हैं इसे सर्कम सर्कल, जो ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से पास होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। और सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है ये दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड मतलब मीडियंस उसमें से पास करती हैं, इसका मतलब ये जो सर्कल का सेंटर है ये इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हो गया। एंड वी नो दैट द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्राइंगल इन द रेशियो 2:1। तो ये हो गया 2, ये 1, राइट? अगर ये 32 है तो ये कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, सो यू विल गेट, लेट दिस पॉइंट इज P, you will get OP is equal to 16। ठीक है, उसके बाद क्या करूं? ये हमारे पास 16 आ गया, मैं इस ट्राइंगल को अगर कंप्लीट कर दूं, ये 90 डिग्री एंगल भी होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री भी होगा, और इसकी ये वाली साइड कितने सेंटीमीटर की आ जाएगी आपके पास? बी, ये जो बीपी था उसका
पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे? हम्म। इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत क्या है आपको? अगर हम इस पूरे बीओसी ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके वो एबीसी का बन जाएगा। बिल्कुल। अगर आप इसमें सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लें, वैसे आप इससे भी कर सकते हो। ये आपकी 32 है, ये परपेंडिकुलर 16 हो गया, यू कैन फाइंड आउट दिस एरिया। ये आपके पास ये साइड भी आ जाएगी, वो साइड निकाल के क्या करोगे, आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करके फिर सेक्टर में से माइनस करोगे। हमने इतना सब कुछ ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए किया, वो तो हम वैसे भी कर लेते। हमारे पास तो सीधा फॉर्मूला था 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, बस मुझे यहाँ ये बता दो कि ये थीटा कितना है। 120 डिग्री। 120 डिग्री हो जाएगा बिकॉज द कंप्लीट एंगल इज 360, सो ईच ऑफ द एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसको 3 टाइम्स कर देंगे, हमारे पास तीनों सेगमेंट्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर हम सर्कल में से माइनस करेंगे, नहीं, तीनों सेगमेंट्स हमारे सीधा प्लस ही हो जाएंगे, वो आपका शेडेड पार्ट आ जाएगा। सो वी आर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। वो हाफ आर स्क्वायर फीट। सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करो। ठीक है, सेक्टर है ट्रायंगल 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/3 आर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7 एंड आर इज 32 माइनस 1/2 32 अब बाहर ही निकाल दो ना, आर स्क्वायर आपने बाहर निकाल दिया, 1/3 पाई माइनस 1/2 साइन 120 जो होता है वो साइन 60 के इक्वल होता है। 120 वाले तो डिलीट नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, 120 वाला भी एक क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है, वो कहेंगे आप मत यूज करो 120 डिग्री, आप दूसरे तरीके से कर लो। फिर मतलब ऐसा नहीं है बेटा, जो डिलीटेड पार्ट है उसका ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते उस रिजल्ट को। आपका साइन 120 डिग्री किसके इक्वल आएगा, जल्दी बताओ। साइन 60 के साइन 60 की वैल्यू 3/2। 3 upon दिस विल बी √3/2। ठीक है, ये तो हमारे पास आएगा एक सेगमेंट का, और इसको आप पूरा शेडेड पार्ट का निकालोगे, एरिया ऑफ डिजाइन आपका कितना हो जाएगा into इसका 3। 3 टाइम्स। ठीक है, करो जल्दी से इसका आंसर निकाल लो। मैम एरिया ऑफ द डिजाइन तो हमें वो सर्कल में से ट्रायंगल का माइनस करना पड़ेगा ना। डिजाइन बेटा वही तो कर दिया, हम कह रहे हैं कि हमने एक सेगमेंट का निकाल दिया, एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, तीनों को प्लस कर दिया। अच्छा आपने दोनों में से सेगमेंट। एक चीज कर सकते हो, या तो आप सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर दो। ठीक है, या तो सर्कल में से ट्रायंगल माइनस होगा, या फिर आपका एक सेगमेंट का निकलेगा, उससे 3 का निकलेगा। और ट्रायंगल का वही आप जैसे निकाल रहे थे कि ये आपका 32 था, आपने ये ड्रॉ किया तो ये 16 आ गया। 16 से अब आपने इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, उसका डबल करके आपके पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगी। फिर आप लगा सकते हो √3/4 a²। फिर आपका सर्कल πr² माइनस √3/4 a² हम निकल इस जाएगा। बीओसी का सीधा वैसे नहीं कर सकते कि हाफ आर स्क्वायर सिन थीटा इनटू 3। बीओसी का हाफ आर स्क्वायर सिन थीटा। हाँ कर सकते हो, हाँ उससे भी निकाल सकते हो। फिर ट्राइंगल का 3 उसका ट्रिपल कर दोगे, पहले से छोटा सा हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ वो भी कर सकते हो। बात तो वही पड़ेगी, आपने 3 से वहां मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 3 से बाद में मल्टीप्लाई कर दिया। πr² में से आपने भी माइनस करना है, यहाँ 1/2 1/3 πr² में से माइनस हो गया। एक ही बात है, ऐसा है एग्जाम टाइम में जब आप करने बैठोगे ना, तो जिस पे आपका दिमाग पहले चलेगा आपने वही करना है, राइट। आपने ये नहीं देखना फिर किस मेथड से करवा रखा है, किससे नहीं करवा रखा। जो आपके दिमाग में आता है और आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, उसमें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, यू कैन अप्लाई।
ठीक है, चलो, one has given the answer, Aryan has given the answer. The answer is 22528 upon 7 minus 768 root 3. What about others? जल्दी से कर लें। किया है आर्यन? किया है या पीछे से देख के बताया? मैम किया है। Okay. Your answer will come out to be 22528 upon 7 minus 768 768 root 3.